সহ বরণী আচার্য উইমেন্স কলেজ আগরতলানি বরণ প্রিন্সিপাল ডক্টর মণিদীপা দেববর্মা ম্যাডাম। আজকে সত্যি একটা বিশেষ দিন, যে দিনটিকে উপলক্ষ করে আমরা আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছি নারীদের সম্মাননা জানানোর জন্য। অ্যাকচুয়ালি এই দিনটিকে বলতে গেলে নারীদের যে কৃতিত্ব সেটাকে সম্মান করা, সেটাই আজকের অনুষ্ঠান। আমার আগের বক্তাগণ বলে গেছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা নারীরা কিভাবে এগিয়ে আছি, কিভাবে কাজ করছে, কিভাবে আরও অগ্রসর হওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে বিভিন্ন দপ্তর থেকে, সেটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তারপরেও বলবো, আমার আগের বক্তা ম্যাডাম বলে গেছেন যে আমাদের এখনো ত্রিপুরা রাজ্যে, যেটা উনি পয়েন্ট আউট করেছেন, এখনো যে শিশু বিবাহ, আমরা কিন্তু এখনো সেকেন্ড পজিশনে আছি, যেটা সত্যি উদ্বেগজনক ঘটনা। কিছুদিন আগেও আমরা একটা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে প্রোগ্রাম হয়েছিল, সেখানে একটা মেয়ে এসছে যে ওকে যখন ও ক্লাস 9-এ পড়ে তখন বিয়ে দেওয়ার জন্য ওর বাড়ির লোক চেষ্টা করেছে। মেয়েটা প্রোটেস্ট করে শিক্ষা দপ্তরকে জানিয়ে তারপর যাই হোক ওকে ওর বিয়েটা ও রুখতে পেরেছে, রোধ করতে পেরেছে। তার মানে আমি বলতে চাইছি যে আমরা নারী দিবস করি, সমাজের অনেক উচ্চ পদে এখনো মহিলারা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আসীন আছে, রাজনীতি ক্ষেত্রেও আমাদের আছে, খেলাতেও আছে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে। তারপরও আমরা দেখছি যে এখনো কিন্তু আমি বলবো যে এখানে আমরা যারা নারী সমাজ আছি, আমাদেরই এগিয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে। একটা বাড়িতে একটা মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়া ইন টিনেজ, এটা কিন্তু আমাদের মহিলা যারা আছে তাদেরও কিন্তু সেখানে অগ্রণী ভূমিকা থাকে। আমরা কিন্তু বুঝতে পারি না যে একটা মেয়েকে যদি আমরা শিক্ষিত করে তুলতে পারি, শিক্ষিত করে ওকে যদি পরিণত বয়সে যদি বিয়ে দেয়, তাহলে তার মেডিকেলি যে লাভজনক ওর ক্ষেত্রে হবে, ইন ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে ফিনান্সিয়ালি হোক, মেন্টালি হোক, যে কোনো ক্ষেত্রে লাভজনক হবে, সেই জিনিসটা আমরা অনেক মহিলা এখনো বুঝতে পারি না। কাজেই এখানে ম্যাডাম বলে গেছেন যে আবকারি দপ্তরে করদাতা আমাদের অনেক মহিলা আছেন যারা স্বসহায়ক গ্রুপে কাজ করছেন। আপনারা যারা আছেন এইসব ক্ষেত্রে, আপনারা তো বিভিন্ন জায়গাতে যান, আপনাদের তরফ থেকে আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, আমরা তো নিজের জন্য কাজ করি, প্লাস আমরা যদি সমাজের জন্য আমরা যদি একটু কাজ করি, তাহলে কিন্তু আমরা ওই শ্রেণীগুলি যাদের জন্য ত্রিপুরা এখন দ্বিতীয় পজিশনে আছে ইন টিনেজ ম্যারেজ, আমরা হয়তো সেই যে মানদণ্ডটা আমরা কমিয়ে আনতে পারবো। আমরা কিন্তু খারাপের দিকে উপরে আছি, ভালোর দিকে উপরে নেই। সেই মানদণ্ডগুলি আমরা কমিয়ে আনতে পারবো, যাতে আমরা ত্রিপুরাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, অ্যাজ এ এক্সাম্পল অফ আমাদের দেশের ক্ষেত্রে এক্সাম্পল হিসাবে নিয়ে আসতে পারি। তার জন্য আমি বলবো, আমরা যখন একটা জিনিস আমি জাস্ট বলি, लोग और जिनको साथ में जो सामने जितनी सारी लेडीज़ हैं, जिनको जो लीडर्स हैं अपने अपने एरिया में, जिन्होंने इतना सारा अचीवमेंट किया है, उन सब के लिए एक जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। यहाँ पर मुझे इस मतलब फंक्शन में आने के लिए मतलब मैं क्या मेरे पास शायद शब्द नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे बड़े बड़े अचीवर्स हैं, जैसे रत्ना जी हैं, राधा जी हैं, यहाँ पर आरती जी हैं, इतने सारे लोग हैं और आप सब लोग हैं।
तो आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। साथ में आप सब जो हमारे ऑफिस से हैं, जैसे कि सेविंग इंस्पेक्टर्स हैं या एजेंट्स हैं जो हमारे सेविंग विभाग के हैं, साथ में टैक्स के ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, आप लोग यहाँ पर आए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन इसमें मैं बोलूँगा, इस प्रोग्राम में जो पहले तो ये चीज़ है कि बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ जो बैठे हुए थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बात की, तो शायद मेरे लिए बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। लेकिन क्या है, कर्टसी डिमांड करती है कि मुझे तो भाई बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो उसमें जो मेरी सबसे पहली, मुझे लगता है जो मेरी तरफ से, हो सकता है मैं गलत हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो है इंटरनेशनल वीमेंस डे, बट इसमें वीमेन के साथ साथ जो मेल फोक का है, जो आप लोग आए हैं, उनका जो पार्टिसिपेशन है वो सबसे बड़ी चीज़ है। वो इसलिए बड़ी चीज़ है कि जो विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, विमेंस राइट की बात करें, तो वो सिर्फ विमेंस के लिए नहीं है, क्योंकि ये रिलेटिव है, वो हम सब के लिए है। वो चाहे हम ओल्ड हो चाहे यंग हो, चाहे मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, चाहे मैं महिला हूँ या पुरुष हूँ, इन सब के लिए उतना इम्पॉर्टेंट है जितना किसी एक विमेन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आप सब लोग आए, आप यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए मैं आप सबको अपनी तरफ से और मंच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो भी विमेंस के इश्यूज होते हैं वो सब हम सबको छूते हैं कहीं ना कहीं, और बहुत सारी चीज़ों में हम ही लोग निर्धारित करते हैं, चाहे वो हम किसी फैमिली में हो या किसी ऑफिस में हो या किसी सोसाइटी में हो, कि कैसे समाज को चलना चाहिए। तो इसलिए हम सब का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है ऐसे प्रोग्राम में, ऐसे फंक्शन में। यहाँ पर प्रेस वाले बहुत लोग हैं, उन्होंने कलेक्ट करके मुझे बताया है, मैं बताता हूँ कि इंडिया में लगभग अगर देखें तो जो मेंस लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है वो करीब 58-59% के आसपास आता है, बट विमेन पार्टिसिपेशन वही करीब 25% आता है। यानी कि हमारा जो विमेन का हम जो भी रीज़न हो, चाहे वो एजुकेशन हो या सोशल सिक्योरिटी हो या अदर सिक्योरिटी हो, जो भी रीज़न हो, पार्टिसिपेशन तो कम ही है। तो हमारे आप देखिए विमेन के कंपेरिजन में ऑलमोस्ट 1/3 विमेन आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द लेबर फोर्स। और लेबर फोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि काम करने, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे लीडरशिप पोजीशन हो, चाहे पंचायत में रिप्रेजेंटेटिव होना हो, चाहे जहाँ भी हो, तो यहाँ पर कम है। और हमारा जीडीपी आप देख ही लेंगे कितना है, करीब $3 ट्रिलियन होने वाला है। लेकिन यही अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज, एक एग्जाम्पल लेंगे यूनाइटेड स्टेट्स, जो आज की सबसे बड़ी इकॉनमी है, मोर देन $24 ट्रिलियन की, तो वहाँ देखेंगे तो जो मेन का पार्टिसिपेशन है हमारा 58% है, तो उनका 68% है। बट जो विमेन पार्टिसिपेशन है वहाँ 57%, वहाँ भी कम है, बट 57% है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जहाँ हमारी ओनली 25% वर्किंग वुमेन वर्क में यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती हैं, अगर उसको हम 57% ले जाएं तो यही सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और जब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है तो बाकी सोशल एम्पावरमेंट और बाकी एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑटोमेटिकली होने लगता है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो इसलिए है कि आप इमेजिन करिए, मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स बोलूँगा कि हमारी जो मिली हो गई, भले वो मेडल नहीं जीत पाई, बट जो उन्होंने बज़ क्रिएट किया, जो उन्होंने मतलब मैं बोलूँगा कि उनका जो एफर्ट था, वो जो उन्होंने किया, शायद उससे बहुत लड़कियों ने इंस्पिरेशन लिया होगा। मेरी डॉटर है, वो जब मैं उसको वो मैच एक दिन, मतलब बहुत पहले की बात है, मैं उसको दिखा रहा था, मैंने कहा देखो ये आप नहीं जानते हैं, आप त्रिपुरा में अब नहीं है, बट मैंने कहा ये देखिए त्रिपुरा की लड़की है और ये जाके वहाँ ओलंपिक में अपना सिक्का मतलब क्या बोलें कि गार्ड कराई है। तो शी वॉज सो हैप्पी एंड देन शी गॉट इंस्पायर्ड कि नहीं उसे भी कुछ स्पोर्ट्स में करना चाहिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि आप वहाँ अचीव ना कर पाएँ, लेकिन उसके बाद भी आप जो है ना, जो लीडरशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि वो जो है, जो नई जनरेशन आएगी वो आपको एज एस्पिरेशन देखेगी। इसलिए आप सबका फेलिसिटेशन, ये जो अचीवमेंट की जब आज हम बात कर रहे हैं इस डे पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं बोलूँगा कि हम कितना भी ये प्रोग्राम कर लें, जब तक कि हमारे एक्शन एंड थॉट्स में वो चीज़ नहीं आएगी, हम विमेन एम्पावरमेंट एक्चुअली रियल टर्म्स में नहीं कर पाएंगे। उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जो कहते हैं ना मिसिंग विमेन,
आप अगर हमारे इंडिया की वर्क फोर्स को ले, लेबर वर्क फोर्स को, यहाँ पर हमारे लेबर कमिश्नर हैं आदित्य जी बैठे, उनको ज़्यादा अच्छा पता होगा। तो अगर देखें किसी दूसरे डेवलप्ड कंट्री की बात करें या डेवलपिंग कंट्री की बात करें, अगर एक चीज़ एक दोनों में रिलेटेड है, जहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा है वहाँ इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन बहुत ज़्यादा है। अब मैं एक स्टैटिस्टिक, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा बोलता है। जो स्टैटिस्टिक्स आप में से यहाँ पर प्रेस की हम रिस्पेक्ट करते हैं, बट हम डिग्निटी वर्ड भूल जाते हैं। और जब मैं बोलता हूँ डिग्निटी का, देखिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब हो सकता है, बट डिग्निटी का मतलब है जब आप अपने थॉट्स में भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके आप अपने एक्शन में उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तब डिग्निटी आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई काम करने के लिए मतलब कोई काम दिया जा रहा है और अगर ये सोचे कि नहीं ये तो ये वुमेन है, शायद ये नहीं कर पाएगी, मैं इसको नहीं देता हूँ, तो आप उसकी कितनी भी रिस्पेक्ट करें, उसके आने पे उसके लिए सीट भी दे दें, बट अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं चूंकि ये वुमेन है इसलिए काम नहीं कर पाएंगी, वहीं हम गलत हैं। और वहाँ अगर हमने सोचा तो समझ लीजिए कि हम जो डिग्निफाइड लाइफ की बात कर रहे हैं कि वी शुड गिव दैट रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी टू वुमेन, देन वी आर मिसिंग दैट पॉइंट। तो ये बहुत जरूर है कि ना सिर्फ हमारे एक्शंस बट हमारे थॉट्स भी वो चीज़ को रिफ्लेक्ट करें कि हमें वुमेन की नॉट ओनली रिस्पेक्ट करना है बट उनकी उतनी डिग्निटी को इंटैक्ट रखना है। और जो भी हम करें वो ये हमेशा हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि कहीं हम कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, बहुत बार अनकॉन्शियस तरीके से होता है, कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि जो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट पे या उनकी एबिलिटी पे या उनकी चीज़ को मतलब उनकी कैपेबिलिटी को हम क्वेश्चन करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे एक्शन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे मैंने पहले बोला कि मैं मानता हूँ कि ऐसा कोई वर्क नहीं है जो मैं कर सकूँ दूसरी वुमेन कोई नहीं कर सकती, या वो जो करे वो हम नहीं करें, वो सब में कैपेबल है। और उसका बेस्ट एग्जांपल तो आप देखेंगे वो अभी जो लेटेस्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी, ऑफकोर्स वो वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी, 4 गोल्ड मेडल लेके आई हैं और चारों लड़कियां हैं। उन्होंने अपने सोचा, काम किया, मेहनत किया, उसके बाद चारों लोगों ने गोल्ड मेडल लेके आई, वो चाहे निखट हो, चाहे नीति हो, चाहे जो भी हैं, वो सब लेके आई। और इसके पहले भी जाए अगर आप स्पोर्ट्स में, जब 2020 के ओलंपिक्स में, जब शायद मैं गलत नहीं हूँ, 7 मेडल्स मिले थे, जिसमें से एक टीम मेडल मिला था जो हॉकी में इंडिया को, और साथ में 6 मेडल्स मिले थे इंडिविजुअल पे, उसमें से 3 वुमेन थी। दैट शोज कि अगर आप हम सब मिल के एक अपॉर्चुनिटी दें विमेन को, तो निश्चित तौर पे वो कहीं पीछे नहीं रहेंगी और शायद हमसे आगे जाएंगी। और विमेन लीडर्स हैं, उनको फेलिसिटेट किया गया, उनको वंस अगेन मैं एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और ये इसलिए नहीं इम्पॉर्टेंट था कि आपको कॉन्ग्रेचुलेट इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि आपने अचीवमेंट किया है, इसके साथ साथ ये भी इसलिए ज़रूरी था ये फेलिसिटेट करना क्योंकि आप लोगों को जो नई यंग जनरेशन है, ये दूसरी महिलाएं जो देखती हैं, वो आपको एज ए लीडर देखेंगी। और जब आपको एक एज ए लीडर देखेंगे, आपको देखेंगे कि आप फेलिसिटेट किए गए, आपने कुछ अचीवमेंट किया है, तो उनकी जो एस्पिरेशंस हैं वो आपकी जो आपका जो अचीवमेंट उससे मैच करेगी और उनको बहुत एनकरेज करेगी कि उन्हें भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इसलिए ये जो फेलिसिटेशन प्रोग्राम होता है, ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं है बट एक और जनरेशन के लिए जो अभी आपकी तरफ देख रही होगी और जो सोच रही होगी कि उन्हें भी ऐसा कुछ करना है। और मैं बोलूँगा एक चीज़ यहाँ पर कि मेरा अनुभव, मेरा भी लगभग 18 साल हो गया है यहाँ पर त्रिपुरा स्टेट में वर्क करते हुए। और जब सबसे पहले मैंने किसी ऑफिस में टेक ओवर किया था, तो यहाँ पर राखी जी बैठी हुई जो आज कमिश्नर टैक्सेस हैं, उस समय बीडीओ कुमार गार्ड थी और उन्हीं से मैंने 1 महीने के लिए चार्ज लिया था। तो बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा उस समय, और वे बोलती थी कि नहीं आप तो सीख जाएंगे, तो मैं तब भी बोलता था कि नहीं मैं सीख जाऊँगा वो बात अलग है, बट जो आपसे सीखने में जो मुझे अच्छा लगेगा, और प्रोबली मैं मानता हूँ, तब भी मानता था, अभी भी मानता हूँ कि विमेन जितनी सेंसिटिव होती हैं चीज़ों के लिए शायद हम में से कोई नहीं होता है। तो वो जो पहलू होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेंसिटिविटी होती है, वो जो विमेन दिखाती हैं, वो चाहे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हो या कमिश्नर टैक्सेस हो, वो शायद हम में से कभी कोई फील ही नहीं करता है। इसलिए मैं हमेशा जब भी हो, मैं हमेशा कभी भी मुझे किसी विमेन ऑफिसर्स के साथ काम करना पड़ा तो हमेशा मुझे लगता है कि मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है और वो जरूर मुझे कुछ न कुछ सिखा कर जाएंगे। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि
विमेन के लिए जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उसमें दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, वो है रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं कि रिस्पेक्ट तो करते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, चाहे मदर हो फादर हो, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, नेचुरली है। हमारे गॉड या गॉडेसेस हैं, उनकी हम Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.